Hello, dear students. Welcome to the class today. Children, we are carrying on with this chapter, the French Revolution. And a lot of discussions we have done on the French Revolution. You all are very well aware. Two topics we have completed where we have discussed the processes of revolution. Last class, what we have done in the last class, we have tried to understand that how the common people have made up their minds to throw the rule of the monarch, Louis XVI. Yes, dear students, Louis XVI, and please remember the people who had played very important role in this. जिन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लोगों को इंस्पायर किया, रिवोल्ट ग्राउंड तक लेके गए, दे वेयर मीराब्यू एंड एबेसीज. मीराब्यू एंड एबेसीज के बारे में वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट. एंड इन द कंट्री साइड, जिस समय व्हेन दे हैड गॉन टू अटेंड द मीटिंग एट द स्टेट्स जनरल, स्टेट्स जनरल की मीटिंग वो अटेंड करने गए, वहां पे ये खबर फैल गई कि people have been mistreated. बहुत ज्यादा लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया गया है. Village to village, when this has spread, plus people have, they also came to know. एकदम they were caught in a frenzy of fear कि the landlords who are there, they have hired some people, कुछ लोगों को उन्होंने किराए पे लिया है, who will come and destroy the complete soil. तो उन्होंने कहा हमारे अनाज को खत्म कर देंगे. देखो क्या होता है ना, when these kind of incidents happen, then very fast some rumors are also spread. अफवाहें फैल जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर में बहुत ज्यादा डर था. And they were caught in a frenzy of fear. ये सारे लोग बहुत डर गए थे. Peasants in several districts, इन्होंने क्या किया, they have seized the hoe. you know ना, वो हाँ जिससे हम मट्टी कोड़ते हैं. One is hoe, एक तो फ्लैट वाला होता है, एक होता है जिसमें कि कांटे बने होते हैं. It is like a fork. So मट्टी कोड़ने में बहुत आराम होती है. They had pitchforks were there. They captured all that and they attacked the Chatiu. What is Chatiu? Chatiu was the castle जहां पे कि nobleman was living. अब ये the Louis XVI को finally, when he saw that the people have made up their mind, the story goes like this, that the people have made up their mind that they will be no longer tolerating the nonsense of the monarch. monarch की मनमानी नहीं चलने देंगे. When the king understood this, so he finally accorded recognition to the National Assembly. National Assembly को इनको recognize करना पड़ा. He accepted the principle कि his powers would from now be checked by a constitution. उन्होंने कहा ठीक है. Now he asked the common people कि make a constitution. आप constitution बनाइए और आप हमको बता दीजिएगा किस तरह से क्या करना है. I am ready for that. अभी बहुत मन से तो नहीं किया था कि इनको कहाँ अच्छा लगता है कि कोई आके उनके ऊपर रूल करे. Somebody comes and dictates the terms and conditions. King did not like it, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था. Got it? And then people, members of the clergy, they were also forced कि अब आप अपने privileges दे दीजिए. Please give up your privileges. Tichet was abolished and land was owned by the church. The land that was owned, church ने जिस land पे कब्जा किया हुआ था, it was all confiscated. As a result, what happened? Government acquired assets. काफी सारे government ने capture कर लिया. The third state, the government that had made, they had captured 2 billion livres. Livres, is the currency of the France. Now what happens? ये सारी चीजें लोगों ने की. उसके बाद major thing that has happened is that France becomes
a constitutional monarchy. Constitutional monarchy. Please understand, actually the common people did not understand क्या हो रहा था and क्यों हो रहा था. The kings always used to think कि हमारे खिलाफ जा रहे हैं, हमको कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी सारी पावर्स को खत्म कर दिया. Kings did not feel it very comfortable, kings did not feel it very nice, but then that's what was the reality. Okay, so the powers क्या हुआ, national assembly that was made. Remember the tennis court, yes, the tennis court oath the people have taken, and the national assembly that was made, they started taking steps. Now उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया था. Whatever they had decided, जिस चीजों को सोचा था वो चीजें करने लग गए. So they drafted the constitution, the national assembly. The national assembly. किंग ने कहा था ना कि भैया बना लो जो बनाना है, क्यों इतनी हंगामा कर रहे हो. Drafted a constitution. Sorry, constitution. I am writing wrong spelling. I don't know why. I am saying something, writing something. I have been making videos since long since then. Drafted a constitution. Now what happened? When the constitution was being drafted, the powers instead of being concentrated, अब क्या हुआ? अच्छा ये भी some drafted the constitution in 1791. ये year याद रखिएगा बेटा. This is important from GK point of view. That the constitution is drafted, किस year में draft हुआ? 1791 में. क्या करना था? Its main object, its main objective, monarch के power को limit करना था. To limit the power of monarch, these powers, it should not be concentrated in the hands of one person. जैसे कि पहले था ना, that the king is the whole soul, the monarch is the only person. One person and having all the power, they were now separated and assigned to different institutions. Okay? Main point was to limit the power of monarch. राजा के पावर को खत्म करना बहुत जरूरी था. Got it? अब ये powers क्या था? It was, instead of being concentrated in the hands of one person, it was now separated and assigned to different institutions. The powers were assigned to different institutions. अलग अलग लोगों को पावर मिली. Many people, many groups were there which were given different kind of powers. The legislative, executive and judiciary. 3 parts में इसको divide कर दिया गया. It was the legislative, executive and judiciary. Okay. Now the legislative, executive and judiciary that existed, इन्होंने क्या किया? फ्रांस को एक constitutional monarchy बना दिया. It was made a constitutional monarchy. Actually, अब समझो. Now understand why we are studying this French Revolution. Are we following the same system in India? Yes. We are following the same system in India. किसने बनाया ये? The French people have made in 1791, but in India we are still following it. 2021 है. 1791
1891, 1991, 1991, 250 years, 250 साल पहले उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. Got it? And प्लीज अंडरस्टैंड, अब आप समझिए कि जो उन्होंने बनाया आज तक वो फॉलो हो रहा है, तो वी शुड नो ना कितना इंपॉर्टेंट है ये हिस्ट्री. हाउ इंपॉर्टेंट इज दिस हिस्ट्री? द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, इन्होंने फ्रांस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया, एंड इट इज एक्सप्लेनिंग हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्ड. सो दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. This made France a constitutional monarchy. Please understand, the kings used to feel bad. क्या इन्होंने किंग को हटा दिया था? No, they did not remove the king. उन्होंने कहा राजा को, आप रहिए, हम आपको हटाना नहीं चाहते हैं. यू आर आवर किंग, वी रेस्पेक्ट यू, प्लीज रिमेन द किंग. लेकिन अब उन्होंने कहा कि कुछ पावर आम आदमी को भी मिलना चाहिए. कॉमन मैन शुड ऑल्सो गेट सम पावर. दैट वॉज देयर मेजर कंसर्न. गॉट इट चिल्ड्रन? सो they vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. So they vested means they have taken the responsibility, they vested the power to make laws, the power to make laws in the National Assembly. ठीक है, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. ये इलेक्शंस होंगे, जो लोग इलेक्ट होके जाएंगे वही लॉज बनाएंगे. ये नहीं कि राजा ने कुछ कह दिया है पूरी प्रजा उसको फॉलो कर रही है. नो, द सिस्टम नीडेड टू बी चेंज्ड. सो नेशनल असेंबली विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. Got it? जो इलेक्टेड हो रहे हैं, द पीपल हु आर गेटिंग इलेक्टेड, उनके लिए उनको ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं. सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज द असेंबली. अब सपोज वी आर द सिटीजन, ठीक है, हमने वी हैव सेलेक्टेड 200 members, and these 200 members will further select the ruler, make the other rulers who will be sitting in the assembly. Every citizen could not had the right to vote. सारे citizen को voting rights नहीं मिल रहे थे. ठीक है, so process क्या था? Citizens voted for, citizens are voting, they voted for a group of electors. ठीक है, एक ग्रुप को इन्होंने इलेक्ट किया, विच वॉज इन ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न चोज दी असेंबली. और यही लोग हैं जो कि असेंबली बनाएंगे, हु इन टर्न चोज दी असेंबली. चुनते थे, असेंबली को चुनने का काम कर इनका था. जो लोग स्टेट्स जनरल में जाके बैठेंगे, you know, every citizen did not had the right to vote. अब देखो प्रॉब्लम कहां शुरू हुई. that every citizen did not had right to vote. अब ये कौन करेगा? Men who are above 25 years of age, जो कि taxes पे कर रहे हैं, at least 3 days of a laborer's wage. This could be asked question.
This could be a frequently asked question that who were the people who can vote. So only men above age of 25 years, ठीक है, 25 साल के हैं, हु और टैक्सेस भी पे कर रहे हैं ना, अगर पैसे की बात नहीं रहेगी तो शायद वोटिंग राइट्स नहीं मिले, हु पेड टैक्सेस equal to at least 3 days of laborer's wage, equal to at least 3 days of laborer's wage. एक लेबरर को जितना उसकी तनख्वाह होती है उतना ही मनी इफ दीज पीपल आर पेइंग, तब तो उनको वोटिंग राइट्स मिलेंगे. एंड दे वर गिवन द स्टेटस ऑफ, और इनको क्या कहा जाएगा, दे वुड बी कॉल्ड एज एक्टिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन, वोटिंग राइट्स मिली है, यू नो इट्स अ वेरी बिग राइट, दे वुड बी कॉल्ड एज एक्टिव सिटीजन. गॉट इट? They had the right to vote. Okay, and ये था, क्योंकि अब क्या हुआ कि एक्टिव सिटीजन को ही वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं, बाकी के लोग क्या करेंगे? The remaining men and all women, they are classed as passive citizen. बाकी के जो लोग बचे हुए हैं और women, they were called as passive citizen. So please understand, remaining men and women were passive citizen. उनको एक्टिव बना दिया, इनको पैसिव बना दिया, so they are the passive citizen. एक्टिव पैसिव तो पता है ना? हाँ, इंग्लिश का ही टर्मिनोलॉजी है, ऑफ कोर्स दिस इज एन इंग्लिश टर्मिनोलॉजी. सो क्या हुआ, इतना बड़ा सच अ बिग डिसीजन इज देयर टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, उसके बाद एज अ मेंबर ऑफ असेंबली. अब टैक्स पेयर्स जो बहुत ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं उनको इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता था. दे यूज्ड टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट इन दिस. एंड डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन, कॉन्स्टिट्यूशन बिगैन. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इनका शुरू होता है वो इट स्टार्टेड बीइंग स्टडीड, इट स्टार्टेड बीइंग कैरिंग फॉरवर्ड okay. Constitution began with the Declaration of Rights. Constitution began with a Declaration of Rights. ठीक है, ऑफ मैन एंड सिटीजन. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पता है क्या चीज से शुरू होता है? आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट्स विथ व्हाट? यस, आपको पता है, यू नो इट वेरी वेल. इट स्टार्ट्स विथ प्रियम्बल. यस, we the people of India having solemnly resolved to the people of India having solemnly resolved to constitute India into a secular socialist democratic republic. Actually my social science teacher was very strict. Actually she तो said कि अगर याद नहीं करोगे तो क्लास में बैठने नहीं दूंगी. आई एम टॉकिंग ऑफ क्लास 9 व्हेन आई वाज इन क्लास 8-9. तो वी वर मेड टू रटाफाई. उस समय जो रटा था ना वो अभी तक मुझे याद है. आई डू रिमेम्बर दैट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दैट प्रोसेस वाज फॉलोड. उसी चीज को हमने फॉलो किया. आप भी देखो, कम से कम क्या होता है, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, आप इंडिया में रहते हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जिस्ट तो पता ही होना चाहिए.
That is, preamble is the complete पूरा constitution का एक short form है. It's a short form of the whole constitution. पूरा constitution आपको एक ही जगह पे नजर आता है. That is what is the preamble all about. So please go through it once. Rights such as right to life, right to freedom of speech, freedom of opinion, equality before law, ये सारे rights, these all rights were considered to be natural and inalienable rights. आप इसको ले नहीं सकते हैं. You cannot take away these rights. Inalienable. So they belong to each human being by birth and it could not be taken away. It was the duty of the state to protect each citizen's natural right. अरे भाई birth होता है भाई. How can you stop anyone from giving the opinion कि no, आप अच्छा आपको ऐसा लगता है, just shut up. You are not allowed to give your opinion. Then there is equality before law, right to life, freedom of speech. कुछ भी बोल सकते हैं, कंट्री में रह रहे हैं, बंधुआ मजदूर थोड़े ही हैं. That is there. Okay, so this was all about. Now the rights that are there, the freedom that is there, ये सारी चीजें जो हैं through pictures explain की गई है. I would like you to see these pictures and understand certain points through the pictures only. Come, let's see. Students, France becomes a constitutional monarchy. Just now we discussed about it. Monarchy बन गई. The Constituent Assembly, National Assembly, they have completed to draft the Constitution 1791 में. Power of monarch was limited now. Unlimited power जो monarch के पास था, rulers के पास था, now it was curbed. And the whole system was divided into three categories: the legislature, executive and judiciary. Legislature, executive and judiciary in three parts में जो सारी चीज़ों को बांटा गया था, इससे फ्रांस जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया था. अब ये नया पॉलिटिकल सिस्टम जो है, हाउ डिड दिस न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क, आखिर इस पॉलिटिकल सिस्टम में काम सारा कैसे हो रहा था, ये बेटा इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस डायग्राम. अब सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं. नीचे आएगा कि वोटिंग राइट्स किनको मिली हुई थी. वोटिंग राइट्स माय डियर स्टूडेंट्स वाज गिवन टू द एक्टिव सिटीजन. In my video, I had already explained कि 25 years of age and above, 25 साल के जो लोग थे वो, और and they are paying the taxes वो कितना पे कर रहे हैं, equal to a labor wage. 3 दिन के बराबर एक लेबर की जो तनख्वाह है उतना टैक्सेस अगर पे कर रहे हैं तो ही वो वोट कर सकते हैं. टैक्सेस से रिलेटेड कागज उनको सबमिट करना पड़ेगा. आप ये सोचो दैट वोटिंग वाज सच अ बिग प्रिविलेज. आज जब वोटिंग का दिन होता है, मेनी पीपल सिट एट होम एंड एंजॉय एट होम. गलत बात है. एक वोटिंग राइट के लिए लोगों ने कितनी जानें दी हैं, कितना स्ट्रगल किया है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूं बेटा आपको कि एक्टिव सिटीजन वेर एंटाइटल्ड टू वोट. 4 million people were there. 4 million of population, 28 million population was there. लेकिन इसमें से only 4 million were getting the right to vote. Got it? Now when they are getting the right to vote, प्लीज अंडरस्टैंड कि नेशनल असेंबली में दे आर सेलेक्टिंग. सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ये वोट करके 50,000 मैन को इलेक्ट किया.
4 मिलियन पीपल वोट करके 50,000 पीपल को इलेक्ट करते हैं. फर्दर दीज पीपल, ये जो 50,000 लोग हैं, दे विल बी वोटिंग फॉर इलेक्टिंग द नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली के मेंबर्स को यही 50,000 पीपल सेलेक्ट करेंगे. 50,000 पीपल को सेलेक्ट करने के लिए एक्टिव सिटीजन हैं, एंड एक्टिव सिटीजन ने जिनको वोट करके पावर दिया है, these people will be further voting for the national assembly. Got it? अब ये नेशनल असेंबली वाले जो लोग हैं, द पीपल, ओनली 745 मेंबर्स पूरे कंट्री में. हमारे यहाँ तो पार्लियामेंट में कितने लोग हैं? व्हाट इज द नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द पार्लियामेंट? Yes, yeah, this is a homework. Please find it out and discuss it with me in the class. Got it, children? तो अब क्या हुआ? नेशनल असेंबली में 745 मेंबर्स आर देयर. इनका पूरा पूरा कंट्रोल रहेगा ओवर द मिनिस्टर्स. ये जो सेकेंड स्टेट के मेंबर्स थे, द मेंबर्स ऑफ द सेकेंड स्टेट, and they will be also controlling the king. एग्जीक्यूटिव पूरी कंट्री को चलाने का काम जो है वो मिनिस्टर्स का है और किंग का है. थर्ड स्टेट के लोगों ने इनको पूरी पूरी ताकत दी है, पूरा पूरा वोट दिया है, so that they can carry on their activities properly and in a very legal manner, लॉ को फॉलो करते हुए. तो लेकिन किंग को उन्होंने एक अलग से पावर दिया. वन सेपरेट प्रिविलेज एंड एडवांटेज वाज गिवन टू द किंग, दैट वाज द वीटो. सपोज नेशनल असेंबली ने मिलके दे हैव डिसाइडेड ऑन समथिंग और मिनिस्टर्स को उन्होंने अपना रिजोल्यूशन पास किया है. इफ द किंग डज नॉट लाइक इट, ही कैन डिनाई दैट डिसीजन. वो उस डिसीजन को मना कर सकते हैं. किंग कैन से अ नो टू द डिसीजन. Saying no to decision, that was a big factor. ये सबसे बड़ी चीज थी. Got it? यही चीज हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं. Are you understanding, children? This is what we are trying to understand. Got it? अब और यही लोग, the active citizen, देखो है उसके ऊपर these people are there. एग्जीक्यूटिव हैं, उनके ऊपर भी कंट्रोल है, लेकिन एक पीपल, वन पर्सन हु इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, कौन थे ये? दे वेयर द जुडिशियरी. दे वेयर द जुडिशियरी. गॉट इट? जुडिशियरी जो है, दैट इज द जज, was the most powerful person as he was directly elected by the active citizen. एक्टिव सिटीजन इनको डायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, इसके वजह से इनके पास इमेंस पावर्स था. काफी सारे पावर्स इनको मिले हुए थे. गॉट इट? वोटिंग हैड हैपेंड एंड द जज इज कीपिंग ऑल अ ट्रैक on the working of the executive and legislative. This diagram is there. Through this diagram, the constitutional monarchy is very clear, and these are some of the points that we needed to discuss. अब आप ये देखो, the next thing that is there. पहला तो आप ये देखो, Declaration of the Rights of Men and Citizen. डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, क्या हमारे राइट्स हैं? ये पेंटिंग किसने बनाई थी? दिस वॉज मेड बाय आर्टिस्ट ली बार्बियर. हु हैज मेड इट? दिस वॉज मेड बाय द आर्टिस्ट ली बार्बियर 1790 में. अब इन्होंने यहां पे बताया है, दे हैव सेड अबाउट द राइट दैट वॉज रिप्रेजेंटिंग फ्रांस को जो बहुत क्लियरली बताया गया था. फिगर ऑन द लेफ्ट सिंबलाइजेज द लॉ. ये देखिए, इसमें लॉ सिंबलाइज हो रहा है वेरी क्लियरली. द लॉ शोन हियर, दिस इज राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन. ये दिस इज इन द फ्रेंच लैंग्वेज. एक्चुअली चिल्ड्रन,
दिस इज द फ्रेंच लैंग्वेज. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है so that you should also know about it. Got it? Declaration of right of man and citizen. सबसे पहली चीज है men are born free and remain free. Equality is there in rights. And every political association that is there, उसमें there is preservation of natural and inalienable rights of man. Some rights are there which cannot be taken away from the common man. कॉमन मैन के पास ये राइट्स हमेशा होने चाहिए. ये क्या है? लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन. कोई भी इनको ऑप्रेस नहीं कर सकता है, दबा नहीं सकता है. ये अपने हिसाब से काम करेंगे. दिस इज फॉर द कॉमन मैन. एंड ऑल दी सॉवरेनिटी दैट इज देयर, जहाँ पे सब लोग प्रेम से भाई बंधु बन के रहेंगे. इट इज रिसाइडिंग इन द नेशन. No group or individual can exercise authority. कोई authority नहीं है that does not come from the people. All the power is vested in the people. लोगों के हाथ में ही सारा पावर है, वहीं से पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. लिबर्टी में क्या है? एनीथिंग कैन बी डन जिससे कि दूसरे को हार्म नहीं हो रहा है, विच इज़ नॉट इंज्यूरियस टू अदर्स. ये लिबर्टी का एक्सप्लेनेशन है. लॉ में क्या है? लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी. लॉ कैन स्टॉप एनी पर्सन फ्रॉम एनी एक्शन जिससे कि सोसाइटी को नुकसान पहुंच रहा है. एंड लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल. आम आदमी का जो दिमाग है, आम आदमी की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो लॉ फुलफिल कर रहा है. सारे सिटीजन्स के पास राइट है टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन. इसको फॉर्म करने के लिए हर एक सिटीजन अपना राइट यूज़ कर सकते हैं. पर्सनली भी कर, थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स दे कैन डू. सो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं फॉर एनीथिंग. एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली. आई मीन फ्रीडम ऑफ द प्रेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंस. पब्लिक फोर्स को मेंटेन करने के लिए फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉमन टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड. गॉट इट? एंड प्रॉपर्टी इज सेक्रेड एंड इनवॉयलेबल. प्रॉपर्टी कोई भी ओन करना चाहता है, दे कैन ओन प्रॉपर्टी. नोबडी कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम डूइंग दैट. नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अनलेस अ लीगली एस्टैब्लिश्ड. जब तक एक लीगली एस्टैब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी इज नॉट देयर. इस तरह से कॉम्पनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस. अगर हम किसी को प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं कि भैया अपना घर खाली कर दो, तो उस घर को खाली करने का कॉस्ट देना पड़ेगा. गॉट इट? दैट इज देयर. सो दीज वेर द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन. यहाँ पे चिल्ड्रन एक पॉइंट बोलना चाहूँगी. इतना कुछ हो रहा है और इन सब चीज़ों से विमेन को बिल्कुल अलग थलग रखा गया है. अत्याचार की शुरुआत होती है. गॉट इट चिल्ड्रन? ओके, थैंक यू चिल्ड्रन एंड ऑल द बेस्ट टू यू.